پرائم ٹائم کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے راشی سٹونز انڈیا، لیلا ہوٹل کے پیچھے، بنجارہ ہلز، روڈ نمبر 3، حیدرآباد۔ فون نمبر 9912041041۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی اور پرائم ٹائم نیوز بلیٹن میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ بی سی تحفظات پر ہائی کورٹ کے فیصلے کا چیف منسٹر نے قانونی ماہرین کے ساتھ لیا جائزہ۔ سپریم کورٹ میں خصوصی درخواست پر غور، پارٹی سطح پر 42% پسماندہ طبقات کو ٹکٹوں میں نمائندگی واحد حل۔ مقامی بلدی اداروں کے انتخابات، ریزرویشن 50% سے تجاوز نہ کریں، ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دی ہدایت۔ بی سی ریزرویشن پر تلنگانہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، 14 اکتوبر کو تلنگانہ بھر میں ہڑتال کی اپیل۔ جناب عامر خان ناگر کرنول ونپرتی اور گدوال کے لیے پی سی سی آرگنائزر مقرر۔ سابق چیف منسٹر پڈوچیری وی نارائن سوامی کل ہند کانگریس کے مبصر، پارٹی کی تنظیم جدید کے لیے احکام جاری۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ریاست کے آبی وسائل کے تحفظ میں بری طرح ناکام، ہریش راؤ کا الزام، کہا حکومت خاموش تماشائی۔ امریکہ میں فائرنگ میں ہلاک نوجوان کے خاندان کے لیے ایکس گریشیا، ریاستی وزراء کا اعلان، مہلوک کے مکان پہنچ کر متعلقین کو دیا پرسہ، نعش کا کیا دیدار۔ پنجا گٹا میں ماں نے 20 سالہ بیٹے کا گلا گھونٹ کر کیا قتل، دل دہلا دینے والے سانحین علاقے میں مچا دی سنسنی۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ انتونوف پہنچا شمس آباد ایئرپورٹ، دیکھنے والے حیرت زدہ، 4 طاقتور انجنوں کی مدد سے کرتا ہے پرواز۔ دارالعلوم دیوبند میں افغان وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی کا والہانہ استقبال، حدیث کی سند حاصل، اب قاسمی کہلانے کے بھی حقدار۔ اور امیر خان متقی کی پریس کانفرنس میں خواتین کو جانے کی کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ راہل گاندھی اور پرینکا کا مودی سے سوال، حکومت کو جواب دینا ہوگا۔ ہیڈلائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہائی کورٹ کی جانب سے بی سی تحفظات اور مجالس سے مقامی انتخابات کے سلسلے میں حکم التوا کو حکومت نے متبادل قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی سے اس سلسلے میں مشاورت کی اور حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں خصوصی درخواست دائر کرنے کی بھی اپیل کی۔ ایسی بھی اطلاعات ہے کہ چیف منسٹر تحفظات کے مسئلے پر کل جماعت اجلاس طلب کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں تاکہ تمام سیاسی پارٹیوں کی رائے حاصل کی جائے اور مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے۔ حکومت کے پاس آخری حربہ اب پارٹی سطح پر تحفظات کی فراہمی باقی رہ گئی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہائی کورٹ نے مقامی بلدی اداروں کے انتخابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ انتخابات اس طرح کروائے جائیں کہ ریزرویشن 50% سے تجاوز نہ کرے۔ حکومت نے مقامی بلدی اداروں میں بی سی طبقے کے لیے 42% ریزرویشن دینے جاری جیو 9 پر عدالت نے پہلے ہی روک لگا دی تھی۔ اب اس معاملے پر عدالت نے تفصیلی فیصلے کی کاپی جاری کی اور واضح کیا کہ اس کا مقصد انتخابات کو روکنا یا انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنا ہرگز نہیں بلکہ صرف جیو میں تبدیلی تجویز ہے تاکہ قانونی حد کے مطابق ریزرویشن برقرار اور باقی رہے۔ بی سی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قائد آر کرشنیا نے کہا مقامی بلدی اداروں کے انتخابات میں بی سی ریزرویشن پر ہائی کورٹ کے حکم التوا کے نتیجے میں بی سیز کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ آر کرشنیا نے بی سی ریزرویشن معاملے پر ہائی کورٹ کے رخ پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ 56% بی سی آبادی کے حقوق کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ کے احکام کے باوجود انتخابی عمل کو روکنا بدقسمتی ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے 14 اکتوبر کو ریاست گیر ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا منڈل کمیشن کی طرز پر تحریک کو مزید سرگرم کیا جائے گا اور دھرنے، راستہ روکنے جیسے اقدامات کے ذریعے ریاست بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔
कुलिन कांग्रेस कमेटी ने न्यूज एडिटर जनाब आमिर खान को AICC ऑब्जर्वर वी नारायण स्वामी साबिक चीफ मिनिस्टर पडुचेरी के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑर्गेनाइजर नामजद करते हुए अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने पार्टी की तंजीम जदीद के सिलसिले में जिलेवारी हल्के असम्बली की असास पर कुलिन कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स की नामजदगी और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस ऑर्गेनाइजर्स को मंजूरी देकर पार्टी की तंजीम जदीद के लिए कमेटियों की तशकील दी है, जिसमें आमिर खान को भी जिम्मेदारी तफवीज की गई है। साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी रियासत के आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा, अगरचे कि मरकजी हुकूमत ने इत्तला दी है कि वो आंध्र प्रदेश हुकूमत के बंका चल्ला प्रोजेक्ट का जायजा ले रही है, फिर भी वजीर आला ने इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, जो काबिल अफसोस है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत गैर कानूनी तौर पर 423 TMC फिट गोदावरी के पानी को मोड़ रही है, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई है। रियासत के वज़रा श्रीधर बाबू और लक्ष्मण कुमार ने अमेरिका में हाल ही में होने वाले फायरिंग के अलमनाक वाक़े में हलाक तेलंगाना के P चंद्रशेखर राव को खिराज पेश किया। उन्होंने अराकीन ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई और कहा, इस मुश्किल घड़ी में सब्र से काम लिया जाए। हुकूमत की जानिब से अराकीन ख़ानदान के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का भी यकीन दिलाया गया। वज़रा ने आन जहानी के भाइयों को उनकी काबिलियत के मुताबिक रोजगार के मौके फराहम करने का वादा किया, चाहे वो निजी शोबे में हो या फिर आउटसोर्सिंग के जरिए। वज़रा ने टीचर्स कॉलोनी BN रेड्डी डिवीजन में वाक़ उनके घर आज पहुंचकर अराकीन खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। మంచి అవకాశాల గురించి మరి ఒక దళిత కుటుంబానికి సంబంధించిన సోదరుడు చంద్రశేఖర్ టెక్సస్లో అనుకోని సంఘటనలో ఒక దుండుగొని చేతిలో మరి హత కావటం జరిగింది. మేము మా సహచార మంత్రివర్గ సోదరులు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారితో పాటు ఈరోజు వారి మృతదేహాన్ని సంబంధించి వారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా పరామర్శించడానికి రావటం జరిగింది. 7 రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ సంఘటన ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా ఈ సంఘటన గురించి తెలుసుకున్న పిదపనే వెంటనే అక్కడ ఉన్న మన కాన్సులేట్స్ని ఎంబసీని కూడా వెంటనే అప్రమత్తం చేసి సంఘటన వివరాలు తెలుసుకొని సంఘటనకు సంబంధించిన దర్యాప్తు వెనువెంటనే చేపట్టాలని, దానికి తోడు కుటుంబ సభ్యులు సంబంధించి ఒక పరంగా మనోవేదన చెందుతా ఉన్న సందర్భంలో మాకు ఇక్కడున్న స్థానికంగా ఉన్న మరి మా నాయకులు మధు యాష్కి గౌడ్ గారు అక్కడ అమెరికాలో ఉండి, రామరెడ్డి గారు, రాజశేఖర్ గారు, वरंगल के काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में पहली पैदावार के आगाज पर साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सद KTR ने बड़ी मसरत का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, पहले यूनिट की पैदावार शुरू होना बायस मसरत है। KTR ने कहा, जब तमाम यूनिट सरगर्म हो जाएंगे तो वरंगल एक अहम टेक्सटाइल मरकज के तौर पर उभरेगा। KTR ने इस मौके पर कहा, टेक्सटाइल पार्क को कायम करते वक्त उनका नारा था, ज़राई पैदावार से फैशन तक, जिसके तहत किसानों से फैशन सनत तक का मरबूत निज़ाम बनाया जाएगा। और नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब पहुंचा तो लोग इसको देखकर हैरत ज़दा रह गए। ये देवखामत तैयारा एंटोनोव कहलाता है और इसमें 4 ताकतवर इंजन नस्ब हैं। एंटोनोव की खास बात यह है कि इसमें भारी सामान लादने और उतारने के लिए ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें खुसूसी रैम्प्स लगाए गए हैं और ये तैयारा बैक वक्त फौजी कार्रवाइयों, इंसानी इमदाद और बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्गो ट्रांसपोर्ट जैसे अहम काम अंजाम देता है। इसकी आमद पर GMR कंपनी ने मसरत का इजहार किया। तैयारे की लैंडिंग के दौरान एविएशन के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में जमा हो गए थे, जिन्होंने इस तैयारे को रनवे पर उतरते देखकर हैरत का इजहार किया। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने
रियासत के आरटीसी के खिलाफ बीआरएस कायदीन के एहतजाज को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। पूरन प्रभाकर ने कहा बीआरएस ने 10 साल में आरटीसी को तबाह कर दिया था और इसे खानगी शोबे के हवाले करने तैयारी की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने के बाद आरटीसी को एक मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील कर दिया गया। पूरन प्रभाकर ने कहा हुकूमत कांग्रेस की तश्कील के 48 घंटों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के इंतखाबी वादे की तकमील की गई। खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के तहत 250 करोड़ खवातीन ने ताहाल आरटीसी में सफर किया। यह खुद एक कारनामा है। आरटीआई वीक के सिलसिले में अहम तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में गवर्नमेंट स्कूल चारमीनार हैदराबाद में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। याद रहे कि 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर आरटीआई वीक के तौर पर मनाया जाता है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जनाब मोहम्मद असलम खान असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर के अलावा जनाब रजीउद्दीन और जनाब अमीरुद्दीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और शहरियों के हुकूक और जमहूरियत की अहमियत के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब मोहम्मद मसूद अहमद एजाज तर्जुमान जिले कांग्रेस कमेटी की दुख्तर का निकाह मोहम्मद जफर इकबाल अहमद MBA सऊदी अरब फर्जन जनाब इकबाल अहमद साहब एक्स आराम को सऊदी अरब के साथ बाद नमाज असर मक्का मस्जिद अहमदपुरा निजामाबाद कॉलोनी में अंजाम पाया। एन कारदान फंक्शन हॉल में पुरतकल्लुफ इस्तकबालिया और इशाइया का अहतमाम किया गया था। तकरीब इशाइया में PCC सदर महेश कुमार गौड़, न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान, जी गंगाधर, मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद शकील और दीगर कायदीन ने शिरकत की। तकरीब में मसूद अहमद एजाज व बरदरान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पंजागुट्टा में जुमा की रात एक दिल दहला देने वाला सानेहा पेश आया, जहां एक मां ने मुबैना तौर पर अपने बेटे का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। खातून अपने तकरीबन 20 साल बेटे हर्षवर्धन के साथ ओम नगर पंजागुट्टा में रहा करती थी। जुमा की रात हर्षवर्धन घर पहुंचा और अपनी मां से रकम का मुतालबा किया। जब मां ने इनकार किया तो दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। रात गए खातून ने मुबैना तौर पर चंद अफराद की मदद से अपने बेटे का गला घोंट कर उसको कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए और मामले की जांच शुरू कर दी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और नजर डालते हैं चंद अहम कौमी खबरों पर। अफगानिस्तान के वजीर खारजा इन दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर है। ऐसे में वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया। तलबा और उलमा ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि बरे-सग़ीर हिंद पाक में इस्लामी उलूम का सबसे बड़ा मरकज दारुल उलूम देवबंद है, जिसका अक्सर मिस्र की जामे अज़हर से मवाजना किया जाता है। इस मौके पर मुत्तकी ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के गहरे सकाफती और मजहबी रिश्तों पर रोशनी डाली और माजी की यादों को भी शेयर किया। स्वागत हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। ज़ाहिर है कि उलमा और तलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है, इसलिए मैं आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे सर आप कैसे देखते हैं, ये रिलेशन कैसे लेके जाना चाहेंगे आप साहब, मुत्तकी साहब, आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में आइंदा में बहुत रोशन नज़र आ रहा है।
सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बावजूद जब अमीर खान मुत्तकी का काफिला दारुल के अहाते में दाखिल हुआ तो बेतदाद में तलबा ने सड़कों पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। बास तलबा ने फूलों की बारिश कर दी जबकि मुतअद्दिद अफराद उनके साथ तस्वीरें लेने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। दारुल उलूम देवबंद के मीडिया इंचार्ज मौलाना अशरफ उस्मानी के मुताबिक मौलाना अमीर खान मुत्तकी के लिए इदारे के अंदर ख़याम तआम का इंतजाम किया गया था। वो हमारे मेहमान हैं और उनके एजाज़ में हमने हर मुमकिन सहूलत फराहम की। इस मौके पर जमीयतुल हिंद के सदर मौलाना अरशद मद्दी ने कहा, अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान का कदीम तालीमी और इल्मी रिश्ता है। मौलाना मुत्तकी अपने मादर इल्मी से मुलाकात के लिए आए हैं। ये हमारा दीनी और इल्मी ताल्लुक़ है। मौलाना अमीर खान मुत्तकी ने दारुल उलूम की लाइब्रेरी में दारुल उलूम के मोहतरम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी से हदीस का सबक पढ़ा और उनसे इजाज़त रिवायत हासिल की। इस मौके पर उन्हें हदीस की सनद अता की गई, जिसके बाद वो अपने नाम के साथ अब खासिमी का लक़ब इस्तेमाल करने के हकदार बन गए हैं। चुनांचे अब वो मौलाना अमीर खान मुत्तकी खासिमी कहलाएंगे। आप लोगों का दखल है। हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है उसके लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जा कर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई, जिसके मौलाना राजा बहंदर प्रताप और इसी तरह मौलाना बरकतुल्ला, इसी तरह मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, कोई सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर ख़ारिजा है। इसलिए आपका हमारे साथ सिर्फ इल्मी ताल्लुक़ नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी का भी ताल्लुक़ है। आप लोगों ने जो जंग आज़ादी में अमेरिका जैसी ताकत और रूस जैसी ताकत को धूल चटवाई है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिर ने सबसे बड़ी ताकत जो बरतानिया की ताकत थी उसको धूल चटवाई है। आपने ये सबक हमसे, हमारे बुजुर्गों से सीखा और आप उसमें कामयाब हुए। आपसे पहले हम कामयाब हुए थे। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते रहे। आपको लगता है कि इस मुलाकात से दोनों मुल्कों के रिश्ते जो हैं वो और बेहतर होंगे? इसकी दलील है कि हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने अपना सफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया। आज अखबार मौलाना अमीर खान मुत्तकी साहब जो आप दारुल उलूम देवबंद में तशरीफ़ लाए हैं, आखिरकार उनसे क्या वार्ता हुई आपकी? हमारी बात यही हुई है, ये ताल्लुकात आप देख रहे हैं अपनी आँख से कि हिंदुस्तान के मुसलमान को और दारुल उलूम को आपसे कितना वालिहाना ताल्लुक़ है। आपने देख लिया उसको। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, जैसे कोई हिंदुस्तान तशरीफ लाए? हम ये समझते हैं कि दुनिया के मुल्कों के अंदर कतई नज़र इसके कि उनका मजहब क्या है, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत प्रेजेंट टाइम में जो मुसलमानों की हालत है, चाहे वो भारत की बात कर लें या अफगानिस्तान में, क्या इन दो मुल्कों में मुसलमानों की हालत को देखते हुए क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों के बीच? नहीं, हमारी ये सियासी बातचीत नहीं हुई है। हमारी कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन सहाफ़ियों के दाखिले की इजाज़त न दिए जाने के मामले पर मोदी हुकूमत से जवाब तलब किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ तालिबान की अफगान हुकूमत में वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन सहाफ़ियों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। इस मामले पर मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर नाराज़गी का इजहार किया, जबकि प्रियंका गांधी समेत कई लीडर्स ने भी हुकूमत से इस मामले में वजाहत तलब की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा, वजीर आजम मोदी को तालिबान के वजीर खारजा के दौरे हिंदुस्तान के दौरान खातून सहाफ़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त न देने के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। जुमा को अफगान वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून सहाफ़ियों को इजाज़त न मिलने पर सियासी हंगामा मचा रहा। अपोजिशन ने सवाल उठाया कि हुकूमत ने किन हालात में इसकी इजाज़त दी थी। अब अपोजिशन जमातें इस मामले पर हुकूमत से जवाब तलब कर रही हैं। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा का कोई किरदार नहीं था। वज़ारत ख़ारजा की वज़ाहत उस वक्त सामने आई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन सहाफ़ियों के दाखिले पर सवाल उठ रहे हैं। वज़ारत ने आज अपने बयान में कहा, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से दिल्ली मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत ख़ारजा की कोई शमूलियत नहीं थी। ख़वातीन सहाफ़ियों ने इस फैसले पर सोशल मीडिया पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और वज़ारत ख़ारजा से इस मामले पर जवाब तलब किया था। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
बीसी तहफुजात पर हाईकोर्ट के फैसले का चीफ मिनिस्टर ने कानूनी माहिरीन के साथ लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त पर गौर। पार्टी सतह पर 42% पसमानदा तबकात को टिकटों में नुमाइंदगी वाहिद हल। मुकामी बल्दीदारों के इंतखाबात, रिजर्वेशन 50% से तजावुज न करें, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दी हिदायत। बीसी रिजर्वेशन पर तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला, 14 अक्टूबर को तेलंगाना भर में हड़ताल की अपील। जनाब आमिर खान नागर कर्नूल वनपर्ती और गढ़वाल के लिए पीसीसी ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। साबिक चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी वी नारायण स्वामी कुल हिंद कांग्रेस के मुबस्सिर। पार्टी की तंजीम जदीद के लिए अहकाम जारी। वजीर आला रेवंत रेड्डी रियासत के आबी वसाइल के तहफ्फुज में बुरी तरह नाकाम। हरीश राव का इल्जाम, कहा हुकूमत खामोश तमाशाई। अमेरिका में फायरिंग में हलाक नौजवान के खानदान के लिए एक्स ग्रेशिया। रियासती वज़रा का ऐलान, महलूक के मकान पहुंचकर मुतालिकीन को दिया पुरसा, नाश का किया दीदार। पंजागुट्टा में मां ने 20 साला बेटे का गला घोंट कर किया कत्ल। दिल दहला देने वाले सानेहन इलाके में मचा दी सनसनी। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा अंतोनोव पहुंचा शमशाबाद एयरपोर्ट। देखने वाले हैरत ज़दा, 4 ताकतवर इंजनों की मदद से करता है परवाज। दारुल उलूम देवबंद में अफगान वजीर खारजा मौलाना अमीर खान मुत्तकी का वालेहाना इस्तकबाल। हदीस की सनद हासिल, अब कासिमी कहलाने के भी हकदार। और आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन को जाने की क्यों इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी और प्रियंका का मोदी से सवाल, हुकूमत को जवाब देना होगा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।